Done. Ma'am. Illustrations. Good morning. 7. Anshdeep, any doubt? No, ma'am, not yet. Your voice is very low, Anshdeep. Mansi, any doubt? Mansi, I think we have done illustrations till 5, Mansi. Am I right? Yes, ma'am. Wait. Yes, ma'am. हाँ. So any doubt till question number 5? Still illustration 5, fine? Acha, do one thing, everyone. Just sit at one place. Don't roam here and there. And with your copy, pen, book, everything. I want to have a look at it. It's fine. It's fine. Nothing is. Acha, okay. Yes. Good morning, everyone. Click the option start video. I want to have a look at your copies and the material which you kept with you. Book, copy, rough copy, है ना? I want to see all that things. I want to see all the stuff. Good morning, Kiranjot. Yes, Prabjot, click at the option start video, beta. It's compulsory for everyone to click at the option start video. Fine. So everyone, please. Yes, Anshdeep, I just have a look at your copy. It's good. Yes, everyone show me your copy and your stuff which you kept with you. Yes, Kiran Preet, yes, you also show me. Nuzat. I think there is, yes, Nuzat, I just saw you. Fine, okay. Take out your stuffs, means open your copy. One rough copy should be there with you every time. And while attending the class, just feel comfortable and sit at some particular place, maybe on the mat, but it's better to sit, have a chair and table. Hai na? It's more comfortable. Good morning, ma'am. Good morning, Nidit. Everyone, I'm going to repeat once more. Click at the option start video. Very quick. Yes. Vanshika Narula, I want to have a look at your copy and the stuff, pencil, pen with you. Akash Khai, click at the option start video. जैसे क्लास में बैठते हो ना, टीचर को दिखाई देता है सब कुछ, ऐसे ही ये अब आपकी क्लास ही है ना? तो आपने हमेशा वीडियो ऑप्शन पे क्लिक करके रखना है बेटा, इसको क्लोज नहीं करना है. कोई बात नहीं, मूवी मूवमेंट हो रही है तो होने दो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Aditi, click at the option start video. It's compulsory for the students who attend the online classes to on the video every time and to be with the stuff, copy, pen, pencil every time. Fine. Otherwise, they have given us the option to shift you to the waiting room. हमें साफ कह दिया है जिसने नहीं क्लिक किए उसको वेटिंग रूम में डाल दो. तो I don't want my any student to be in the waiting room. Fine. तो आपने हमेशा बेटा इसी में क्लिक करना है. Whenever anyone enter in our online classes, तो उनको लगे कि the students are really obedient, here following the instructions of the teacher, है ना? आकाश बेटा, click at the option start video. Vineet, click at the option start video. Aditi. हाँ मैम, कर रहा हूँ मैम, अभी आया हूँ मैम, कर रहा हूँ. 1 मिनट हो जाता है. First, yes. Akash, I want to see the copy and the stuff with you. Spursh, I also want to have a look at the copy. Yeah, Spursh, you also. Copy pen with you. Those who are having NCRT book, just keep the books with you. I think everyone is having except 2 and 3. Keep the stuff with you. Yes, so you have to be like that only. Don't switch off these videos. Okay? Aditi, Vineet and Jagrup. Aditi, click at the option. Yes. Vineet. Vineet नहीं कर रहा है क्लिक. Fine.
मैम 1 मिनट में कर रहा हूँ, नेटवर्क इशू पड़ रहा है मैम, कर रहा हूँ 1 मिनट बाद, 1 मिनट दे दो। Jaskirat is also there. Yes, beta. See, everyone is there only. I'm waiting for Yes, the minute. Click the option start video. Jaskirat also. Beta, we are doing the second chapter, and we have reached to the illustration number, I think 5. है ना? We have done the illustrations 5. We have done. Now I want to start with the 6th one. ठीक है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। Vineet has gone to waiting room because he is not owning the video till now. मैंने waiting room में भेज दिया उसे। I don't want I should send anyone else to there. Be very quick. He has shifted to waiting room. तो प्लीज ऑन कीजिए, नहीं तो मैं वेटिंग रूम में भेज दूंगी आपको। क्लिक कर दो ऑप्शन स्टार्ट वीडियो और अब बंद नहीं करोगे अपनी वीडियोस। जसकीरत स्टार्ट इट। गुड मॉर्निंग मैम। युवराज, निदित, स्पर्श। ओके, नाउ टेल मी एनी डाउट रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे। किसी को कोई डाउट है उस क्वेश्चन में तो बताइए। कोई है ऐसा जिसको डाउट है क्वेश्चन में तो प्लीज लेट मी नो। यस, एनीवन? किसी को डाउट है बेटा क्वेश्चन में तो लेट मी नो। नो मैम 5th वाला नहीं हुआ था मैम। 5th बेटा क्या क्वेश्चन है? इलस्ट्रेशन। विनीत, विनीत आवाज मैम क्वेश्चन नहीं हुआ मैम। विनीत नहीं सुन रहा। यस मैम। विनीत आप अपने आप को आप वो करो, म्यूट हो आप बेटा। हाँ मैम सुन रहा हूँ मैम। 5th वाला क्वेश्चन? यस मैम क्वेश्चन नहीं हुआ मैम, करके भी देखा। यस मैम। आई एम गोइंग टू शेयर द क्वेश्चंस विद यू। 5th वाला क्वेश्चन। ओके, लेट्स सी बेटा। मैम यस मैम नांसी। मैम हम सेकंड वाला इंटरेस्ट और ड्राइंग पे अगर 6/12 लगा रहे हैं तो आंसर बहुत डिफरेंट आ रहा है मैम, आप ही बता देते और हैं बस आंसर सेकंड। ठीक किससे आ रहा है बिना 6/12 लगाए? हाँ मैम वो गूगल में तो उससे दिखा रहा है आंसर। चलो मैं रीचेक करके आपको बताऊंगी मानसी। फाइन, सेकंड वाला क्वेश्चन रीचेक करके बताती हूँ। फिलहाल 5th बताती हूँ। मैं रीचेक करती हूँ मानसी, देन आई विल लेट यू नो। Okay. Let's have a look at the question number 5. He says that there is a doubt in question number 5. Yes. Question. Is screen visible to everyone? यस मैम। अच्छा, इसमें there is something different in question number 5. I'm going to read the question for you. Rakhi and Shikha are partners in a firm with capital of rupees 2 lakh and 3 lakh respectively. The profit of the firm for the year ended 2016-17 is rupees 23,200. As per the partnership deed, they share the profit in their capital ratio. तो कैपिटल रेशियो क्या है यहाँ पे? 2:3. 1:3. After allowing the salary of 500 per month to Shikha, तो शिखा की सैलरी कितनी होगी? 5,000 multiplied by 12 and interest on partners capital at the rate of 10% per annum. During the year, Rakhi withdraw 7,000 and Shikha 10,000. As per partnership deed, salary and interest are caption treated as charge. इसका क्या मतलब है caption treated as charge? इसका मतलब है कि आपको सैलरी और इंटरेस्ट देना ही है, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा है चाहे नहीं लिखा। दिस इज समथिंग न्यू थिंग फॉर यू। जब लिखा होगा ट्रीटेड एज चार्ज, चार्ज का मतलब है कि आपको देना ही है, चाहे आपको लॉस हो चाहे आपको प्रॉफिट हो, चाहे मेंशन हो डीड में चाहे ना मेंशन हो। तो आप इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दोगे। और देखो नीचे क्या लिखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू पेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको सैलरी और इंटरेस्ट उसको देना है। तो जो चीजें एप्रोप्रिएशन होती हैं, नॉट चार्ज होती हैं, वो आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अगर वो चार्ज लिखा है तो वो किस में आएंगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही सैलरी भी लिखोगे, इंटरेस्ट भी लिखोगे। फाइन विनीत? Excuse me. यस। हमारे क्वेश्चन में तो मैम प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिख रहा है मैम। जिसमें Ma'am, yes. एप्रोप्रिएशन लिख रहा है ना, वो एप्रोप्रिएशन हाँ। डालो। अदरवाइज चार्ज का मतलब पता है क्या होता है कि आपको देना ही देना है। फाइन, आपको देना ही देना है। अगर ये एक्चुअली बेटा नई और पुरानी बुक का डिफरेंस है, पुरानी बुक में प्रॉफिट एंड लॉस है, नई में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है। तो जिसमें जो Yes, है ma'am. वो देना है। चार्ज का मतलब होता है चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, चाहे पार्टनरशिप डीड में लिखा हो चाहे ना लिखा हो, पर आपको देना है। देखो तभी तो क्वेश्चन में लॉस आ गया उसको, क्योंकि उसका प्रॉफिट कम है पर वो दे याद आ रहा है। तो चार्ज का मतलब नुकसान हो जाए, पर आपको इंटरेस्ट भी देना है, आपको सैलरी भी देनी है। Done? ओके मैम। मैम एक्चुअली मैम गूगल पे आंसर देखा था तो मैम हाँ? उसने मैम वो जो प्रॉफिट था ना वो मैम वो डेबिट साइड में दे रखा था, अपन तो पर क्रेडिट साइड में लिखते हैं मैम, उसमें दिक्कत आई थी मैम। मुझे समझ में, ये बंद कर दूं क्वेश्चन फिर डिस्कस करूं आपसे? हाँ मैम बिल्कुल मैम। हाँ विनीत अब बताओ आप। मैम मैंने गूगल पे आंसर देखा था मैम उसका। हाँ तो मैम उसमें मैम जो अपन मतलब वो जो एप्रोप्रिएशन का बैलेंस निकलता है ना मैम, वो अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट की। हाँ बेटा देखो, जो एप्रोप्रिएशन का बैलेंस आया होगा वो भी तो लॉस ही आया होगा। अच्छा तो मैम जो लॉस आएगा वो अपन मतलब मैम वो कंफ्यूज हो गया था, मतलब वो देखो उधर सुनो, क्यों लिखा है उधर क्यों? जब हाँ ठीक कह रहे हो आप, जब बेटा प्रॉफिट आते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, तो प्रॉफिट हाँ, मैम। पार्टनरशिप की क्रेडिट साइड में आता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस ओके, एप्रोप्रिएशन में लॉस आता है तो पार्टनरशिप की डेबिट साइड में आता है। ओके मैम। क्योंकि खुद सोचो ना बेटा, खुद सोचो, एक बार इमेजिन करो कि पार्टनरशिप हाँ। अकाउंट है, पार्टनरशिप सॉरी कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट हाँ। की क्रेडिट साइड में सारी वो चीज आती है जिससे बढ़ता है। तो अगर प्रॉफिट आएगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और डेबिट ओके। साइड में वो सारी चीजें आती है जिससे कैपिटल हमारी कम होती है। तो अगर लॉस हुआ है तो कहाँ पे ओके। आएगा? वो डेबिट साइड। ठीक है विनीत? ओके। और मैम अगर क्वेश्चन में कई बोलिए हाँ विनीत बोलो। मैम, क्वेश्चनों में कई बार लिखा होता है कैपिटल रेशो में बांटो मैम कैपिटल को, तो मैम वो रेशो कैसे बटेगा मैम, वो नहीं आया मैम। नहीं और नहीं बता देखो, दो किस कैपिटल रेशियो में बांटने तो आसान होते हैं। कैपिटल है 3 लाख, मैम, एक की 5 लाख है, तो क्या हाँ, रेशियो हुई 3:5, मैम। उसको लोएस्ट टर्म में निकाल लेते हैं। अच्छा तो मैम वो 3:5 में ले लेंगे उसको। हाँ हाँ बिल्कुल, ओके। कैपिटल रेशियो का मतलब होता है कैपिटल को लोएस्ट टर्म में सबसे छोटी रेशियो निकाल लो। और कभी कभी बेटा ओके। सबको बता रही हूँ मैं, ऐसा भी होता है जब हम रेशियो में बांटते हैं तो डेसिमल में आंसर आ जाता है। तो आपने डेसिमल में ना लिख के राउंड फिगर में लेना है विनीत। हाँ तो ये मत सोचिए कि ये तो गलत आ गया, नहीं, डेसिमल में भी आगे आंसर्स आएंगे, पर आप डेसिमल में नहीं लिखोगे, उसे लिखोगे राउंड फिगर में। ठीक है, हमेशा राउंड फिगर में आंसर करो। ओके मैम। डेसिमल के मैम बाद सेकंड में आ रहा है मैम, हाँ मानसी बोलो। सेकंड क्वेश्चन मैम, सेकंड क्वेश्चन में डेसिमल में आ रहा है आंसर। हाँ तो ठीक है, डेसिमल में कर दो। पेपर में ना बेटा डेसिमल में ना करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप उसे डेसिमल हटा के रेशियो उसमें कर दो। पॉइंट्स डेसिमल में नहीं करना है कभी भी, ठीक है, पर डेसिमल में आता है, आप उसको पूरा नंबर में कर दो। ठीक है मैम और फिफ्थ क्वेश्चन में मैं कह रही थी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है बस। हाँ यस। मैम एक्सक्यूज मी। यस मैम सेकंड क्वेश्चन में ड्राइंग पे इंटरेस्ट पूरे साल का नहीं लगेगा? बेटा मैं देख लेती हूँ एक बार बेटे, वेट। लेट मी सी। बेटा नहीं 6 मंथ्स का लगेगा एक्चुअली। बेटा यहाँ पे इसने पूरे साल का पता है क्यों लगा दिया है? क्योंकि इन्होंने अभी आपको यहाँ तक हमें अभी समझाया नहीं है।
चैप्टर में पहुंचा नहीं है, लेकिन हमेशा 6 मंथ्स का लगता है। अभी मैंने आपको थ्योरी में नहीं कराई ना इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग, अभी थ्योरी में आएगी, तब तक के छोड़ दीजिए सेकंड क्वेश्चन को भी, तब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। पर लगेगा 6 मंथ्स का आंसर गलत है, मैंने पूरे साल का लगा दिया। कोई बात नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ना पहुंचे नहीं, इसलिए आपको कंफ्यूजन है। मैम मैंने तो मैम जोड़ भाग करके आंसर निकाल दिया मैम पूरा, नहीं वो ऐसे नहीं आंसर करना, मैच हो ऐसे गया नहीं मैम करना मेरा। बेटा। बेटे हाँ, आप मैम, अभी वो तो निकाल निकल दिए, जाएंगे क्या ठीक। आंसर्स विनीत, बिकॉज वी आर हैविंग द आंसर्स, लेकिन आगे जाके आंसर्स थोड़ा ना होंगे आपके पास, तब कैसे करोगे? पेपर में आंसर हाँ थोड़ा मैम, वो मिलेगा। पहले मैम मैंने साल भर का लगा के देखा, नहीं आया तो मैंने 6 महीने का जोड़ के कर दिया मैम, 6 वो का ही निकल होता है। गया अभी कुल थ्योरी मिला के कराऊंगी मैम। बेटे, मैंने कराई नहीं ना उसकी थ्योरी, अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया नहीं। नाउ ओके मैम। जस्ट हैव अ लुक एट दिस स्क्रीन, दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 6। जिसके पास बुक्स है, यू कैन ओपन द बुक एनसीईआरटी। दिस इज फ्रॉम एनसीईआरटी इलस्ट्रेशन नंबर 6। जिसके पास बुक्स है, बुक्स खोल लो। Is the screen visible to everyone? Yes, Mansi, ma'am. is it visible? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. हाँ, अब देखिए, Anupam and Abhishek are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their capital account showed a balance of 1,50,000 and rupees 2 lakh respectively on January 1, 2017. Show the treatment of interest on capital. बेटा इसमें ना 4 ऑप्शंस दी गई हैं कि चारों कंडीशंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। फर्स्ट कंडीशन, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। उसने कहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप में कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या करेंगे? माई क्वेश्चन इज फॉर युवराज। युवराज, क्लिक कर द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो और मुझे बताओ इसका क्या आंसर है। हाँ जी युवराज। मैम अगर कहते डीड होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यस, गुड। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, साइलेंट मतलब क्या है? पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। नाउ हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। In the absence of a specific provision in the deed, no interest will be paid on the capital to the partners. ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क्स में। फाइन, फर्स्ट इज क्लियर। नाउ कम टू द सेकंड वन। इफ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उसने लिखा है 8% एंड द फर्म इंकर्ड लॉस, लेकिन फर्म को लॉस हो गया है, उसने कहा है कि इंटरेस्ट देना है पर फर्म को नुकसान हो गया, तो क्या करेंगे? दिस क्वेश्चन इज फॉर स्पर्श। मैम नहीं देंगे। यस, नहीं देंगे। क्यों? जब फर्म को लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। देखिए 2 कंडीशंस ध्यान में देखिए। पहली कंडीशन में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन में अगर फर्म को लॉस होता है और पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट दो, पर लॉस हो गया तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड ने कहा है 8% इंटरेस्ट दो एंड द फर्म अंडर प्रॉफिट 50,000, उस कंडीशन में मानसी क्या करेंगे? मैम इस कंडीशन पे हम दोनों पे पहले 8% का उसी कैपिटल पे वो लगा देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट। उसके बाद क्वेश्चन उनकी दोनों सिंपल की है, ऐड बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे हम? 8% इंटरेस्ट दे देंगे। देखिए 1,50,000 का 8% करेंगे तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी में 12,000। उधर से हम 2 लाख का करेंगे 8% 16,000, तो हम कितना दे देंगे इंटरेस्ट उनको? इसका मतलब 50,000 में 28,000 हम इंटरेस्ट दे देंगे। अब एक बार इमेजिन करना है आपने इसको। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, उसकी क्रेडिट साइड में लिख दिया 50,000, डेबिट साइड में लिख दिया इंटरेस्ट 12,000 16,000, कितना बच गया? एक बार रफ कॉपी में करो, रफ कॉपी में करो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दो। रफ कॉपी से सबके पास? यस, सब ऑप्शन क्लिक करो स्टार्ट वीडियो में, ताकि मुझे हर किसी की कॉपी दिखाई दे लिखते हुए। यूजर कुमारी नम्रता लिखिए जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए।
किरणजोत बना रहे हो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? जल्दी से बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, उसमें क्रेडिट साइड में लिखो बाय नेट प्रॉफिट 50,000। यस, मैंने कॉपीज देखनी है सबकी, मुझे दिखाओगे, शो करोगे टेबल बना हुआ। उसकी क्रेडिट साइड में लिखिए प्रॉफिट 50,000, ठीक है। डेबिट में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हर्षल बजाज कॉपी दिखाइए अपनी लिखते हुए। यस, लिखो उस पे हर्षल बजाज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। क्रेडिट साइड में लिखो बाय नेट प्रॉफिट 50,000, डेबिट साइड में लिखो टू इंटरेस्ट। अनुपम के आगे 12,000, अभिषेक के आगे 16,000। पूरा कंप्लीट करो। आदित्य कॉपी दिखाओ अपनी। नेदेत, आई वांट टू हैव अ लुक एट योर कॉपी। अंशदीप, आई वांट टू हैव अ लुक एट योर कॉपी। हाँ जी, आप बीच में प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट बांटो रिमेनिंग पार्टनर्स में। कौन सी रेशो में बांटोगे? हम 3:2। यस, पूरा कंप्लीट करके आई वांट टू हैव अ लुक एट योर कॉपीज। जिसका नाम लूंगी सॉल्यूशन दिखाओ मुझे। यस निशा, गुड। हर्षल बजाज, आप लिख क्यों नहीं रहे हो? मुझे हर किसी की कॉपी देखनी है, कैसे किया ये क्वेश्चन आपने कॉपी में। आकाश भाई क्वेश्चन दिखाओ। क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो। आकांक्षा, मैम इसको शेयर करना है अब? हाँ शेयर करो। यस, मुझे पूरा क्वेश्चन दिखाओ। शेयर करके क्या लिखोगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट, अनुपम एंड अभिषेक। उसको बांट दो रेशो में 3:2। मैम बांट दिया मैंने। मानसी, वेट फॉर मी। मानसी अपनी कॉपी दिखाओ। शो मी कॉपी अगेन। फाइन, ठीक है। और जो जिसका हो गया मुझे बताओगे, मैं तब शेयर करोगे कॉपी अपनी। युवराज डन? मैम बस एक सेकंड। नम्रता डन? कुमारी नम्रता डन? शो मी द सॉल्यूशन। नुजत, शो मी द सॉल्यूशन। हर्षल, शो मी द सॉल्यूशन। अंशदीप, शो मी द सॉल्यूशन। प्रभजोत, शो मी द सॉल्यूशन। अरमान, वंशिका नरूला। मैम हो गया। किसका हुआ है? नेम योरसेल्फ। मैम भी नहीं, मैम ये 22,000 को तो बांटेंगे ना मैम अपन। विनीत अपनी कॉपी दिखाओ मुझे। कैसे? मैम डन। वेट विनीत, वेट। हाँ विनीत, शो मी योर कॉपी। हाँ ठीक है विनीत, आपने इधर क्यों नहीं लिखा क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट 50,000? क्रेडिट साइड मैम लिखा तो सबसे ऊपर लिख तो रहा है मैम, बाय प्रॉफिट 50,000। हाँ ठीक है, फाइन 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 फाइन, ठीक है। डेबिट साइड दिखाओ एक बार फिर से। डेबिट, ठीक है, ठीक किया आपने। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है ठीक है। किरणजोत, कितना प्रॉफिट आया अनुपम के पास? किरणजोत, अनुपम के पास प्रॉफिट कितना आया? आप बेटा म्यूट हो। किरणजोत, किरणजोत आप म्यूट हो। हाँ किरणजोत, 15,000 किरण। 15,200। ओके, नहीं मैम ये नहीं आ रहा है। मैम मेरा तो 13,200 आ रहा है मैम। मैम यस, मेरा भी 13,200 आ रहा है। 13,200 आ रहा है। मैम देखो 22,000 को बांटना है आपने 3:2 में। 22,000 को बांटना 3:2 में।
सॉरी। यस मैम। ईशा दिखा रही है मुझे 22,000 को बांटोगे 3:2 में, नुजरत कितना आया बेटा? मैम 13,200 आ रहा है अनुपम का। और अभिषेक का? मैम 8,800। यस मैम, Fine, 8,800। यही आ रहा है सबका? विनीत यही है? मैम यस। हाँ मैम यही यस मैम, यही आ रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सी पार्ट। अब आ जाओ डी यस में। मैम। डी थोड़ा सा डिफरेंट है। कम टू द डी पार्ट। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, वही सेम उसने कहा है कि पार्टनरशिप डीड ने कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगेन 8% है, एंड द फर्म अंडर प्रॉफिट ऑफ 14,000। अब आप बताइए क्या करेंगे? इंटरेस्ट हमारा टोटल कितना बन रहा है? 28,000, लेकिन हमारे पास सिर्फ प्रॉफिट 14,000 है, तो क्या करेंगे? मैम लॉस हो गया ना इसमें हमें, तो नहीं, उसमें लॉस नहीं दिखाएंगे। अब उस कंडीशन में हम लॉस नहीं दिखाएंगे, वो तब दिखाएंगे जब लिखा होगा चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट। इस कंडीशन में जितना हमारे पास है 14,000, हम सिर्फ उतना ही बांटेंगे। फिर से सुनिए, हम लॉस नहीं दिखाएंगे, लॉस तब दिखाएंगे जब लिखा होगा चार्ज। चार्ज मतलब देना ही देना है। इस क्वेश्चन में नहीं लिखा चार्ज, तो आपके पास जितना प्रॉफिट है 14,000 उतना ही बांटेंगे। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बनता तो टोटल 28,000 है, 28,000 है, तो 14 कैसे करें? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। अब पहले अनुपम को इंटरेस्ट मिलना है 12,000, अभिषेक को इंटरेस्ट मिलना है 16,000। तो हम क्या करेंगे? 12 और 16 की लोएस्ट टर्म निकालेंगे। 12 और 16 की लोएस्ट टर्म क्या आएगी? ये 2 पे काटो, 2 6 जा, 2 8 जा, और लोएस्ट क्या आ गई? ये रेशो बन गई हमारी 2 के टेबल से जाएगा 3:4। हम 12,000 और 16,000 को क्या करेंगे? लोएस्ट रेशो में निकालेंगे। ये बन जाएगा 3:4। फिर हम क्या करेंगे? 14,000 को 3:4 में बांट देंगे। फाइन। फिर हम 14,000 को 3:4 में बांट देंगे। अब देखो, मैं आंसर पढ़ रही हूं, उसका ध्यान से सुनना। डी पार्ट। As the profit for the year is rupees 14,000, which is less than the amount of interest on capital, that is 28,000. उसने कहा है उनका इंटरेस्ट बन रहा है 28,000, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 14,000 है, हमने उनको सिर्फ 14 ही देना है। इंटरेस्ट विल बी पेड टू द एक्सटेंड ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट। उसने कहा है जितना हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ हम उतने ही पैसे देंगे, 14,000। अनुपम एंड अभिषेक विल बी क्रेडिट, एक को 6,000 मिलेगा, एक को 8,000 मिलेगा, बन गए ना 14। लेकिन 6 और 8 कैसे आएगा? दिस अमाउंट टू शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे 12,000, 6,000, उसका रेशो निकालेंगे। रेशो कैसे करते हैं? उसको लोएस्ट टर्म में काट दो। 2 के टेबल में आएगा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 6:8 आ गया। उसको फिर से काटो, क्या आ गया? 3:4। अब आप 14,000 को 3:4 में बांटो। विनीत बांट के देखो जल्दी से। 14,000 को मैम बांट दिया मैम, 6,000 और 8,000 ही आ रहा है। अब बताइए किसको नहीं समझ आया? यस नो में मुझे आंसर चाहिए, जल्दी से क्लिक कर दीजिए। जिसको नहीं समझ आया नो में लिखिए, जिसको आ गया यस कीजिए जल्दी से। मैम ये इसी केस में होगा? हाँ, ये इसी में केस में होगा। यस बेटा, ये टोटल 4 केस हैं। ये वो केस है जबकि इंटरेस्ट ज्यादा बनता है कैपिटल के ऊपर, लेकिन आपके पास पैसा कम है। क्या करना है? तो इंटरेस्ट की रेशो में बांट देना है। बताइए किसको नहीं समझ आया? मैम ये तो आ गया मैम, 6,000 और 8,000 कैसे निकाला, पर मैम उसमें कंफ्यूज हो गया। 14,000 को मतलब वो उसमें कैसे बांटना? मुझे यस नो में पहले आंसर दो, किसको नहीं समझ आया? यस, वेरी क्विक, 1 मिनट में आंसर चाहिए, जल्दी। अंशदीप मैं फिर से बता देती हूँ, जिसको नहीं समझ आया पुट द ऑप्शन क्रॉस, वेरी क्विक। सिर्फ 12 लोगों ने आंसर दिया है, जल्दी से बताइए। प्रभजोत फाइन, ऋतिक फाइन, यस यस यस, जल्दी से। जगरूप नो रिस्पॉन्स, जसकीरत नो रिस्पॉन्स, आकांक्षा, आकाश भाई, जसकीरत, निदित। जसकीरत आप जल्दी से डिसाइड किया करो आपको समझ आया कि नहीं आया। सबसे लेट आप डालते हो क्रॉस।
हाँ जी, युवराज को समझ आ गया, स्पर्श को समझ आ गया, निशा को समझ आ गया, निदित को समझ आ गया, मानसी लूजर। अब जिनको नहीं समझ आया, जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन अगेन, ठीक है, फिर से देखिए। जिनको नहीं समझ आया एक बार ध्यान से फोकस कीजिए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आपका प्रॉफिट है 14,000, प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 14,000 है। पिछले क्वेश्चन में सी पार्ट में आपके पास प्रॉफिट था 50,000, 50,000, लेकिन अब आपके पास प्रॉफिट कम है जो कि है 14,000, लेकिन आपका इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 28,000। देखो आपने बनाया ना इंटरेस्ट 28,000। अब देखो आपने पिछले क्वेश्चन में क्या लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में बनाया था, क्रेडिट साइड में लिखा था प्रॉफिट 50,000, अब लिखोगे क्रेडिट साइड में 14,000, ठीक है। अब उसने कहा है इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कम है लेकिन इंटरेस्ट ज्यादा है, कहने का मतलब है आपके पास सिर्फ 14,000 है तो आप 28,000 कैसे दे दोगे? कॉमन सेंस है, जब आपके पास 14 रुपए है सिर्फ तो 28 कैसे दे दोगे? तो हम क्या करेंगे, 28 नहीं देंगे, हम सिर्फ 14 को ही दो लोगों के बीच में बांटेंगे। अब 14 को दो लोगों के बीच में कैसे बांटेंगे, कौन सी रेशो में बांटेंगे? तो वो रेशो कौन सी होगी? उनकी खुद की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो। पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेंगे, एक का बना 12,000, एक का बना 16,000, 12 और 16 की रेशो निकालो, 12,000 और 16,000। 12-16 की रेशो कैसे निकलती है? इसको 2 से कैंसिल करो, क्या बन गया? एक 6 और एक बन गया 8। लोएस्ट टर्म में कैंसिल करना आता है ना 2 के टेबल में, 2 6 12, 2 8 16, तो क्या बन गया? 6 और 8। 6 और 8 को फिर से कैंसिल करो, क्या बन गया? 3:4। तो यहाँ पे आपने एक नई रेशो निकाल ली है 3:4। अब जो 14,000 है उसे 3:4 में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे? 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7। 3:4 का मतलब क्या होता है? 3/7। फिर 14,000 इंटू 4/7। अभी भी बता दीजिए किसी को नहीं समझ आया। अब जरा जिनको समझ आ गया वो टिक लगाइए, अगर अभी भी नहीं समझ आया तो मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाती हूँ। हाँ जी, जिनका क्रॉस है अगर समझ आ गया है तो वो ग्रीन कर दीजिए, नहीं क्रॉस है तो क्रॉस रहने दीजिए, मैं व्हाइट बोर्ड पे समझा दूं अगर अभी भी नहीं समझ आया। पर थोड़ा जल्दी काम किया करो जो भी करो। मैम हाँ जी, मैम आपसे एक चीज पूछी थी, जैसे आपने कहा कि इस वाले क्वेश्चन में तो उन्होंने कहा था इंटरेस्ट हमारे प्रॉफिट 14,000 है, और फिफ्थ हाँ। क्वेश्चन में भी मैम ऐसा ही था कि हमारा लॉस आ रहा था, तो फिर उसमें और इसमें क्या डिफरेंस हुआ मैम? बेटे कौन सा क्वेश्चन कह रहे हो? जो फिफ्थ वाला बताया मैंने अभी इससे पहले, पीछे वाला क्वेश्चन फिफ्थ? बेटा मानसी, और मैम राखी इसमें एंड शिखा। उन दोनों में अंतर था ना मानसी, उसमें लिखा था चार्ज, पढ़ी थी ना लाइन, चार्ज। चार्ज का मतलब होता है चाहे नुकसान हो चाहे फायदा हो, इतना पैसा देना ही देना है, क्योंकि वह चार्ज लिखा था वर्ड। उसको फिफ्थ क्वेश्चन को खोल के देखना, वहां लिखा है चार्ज। जहां चार्ज लिखा होगा उसका मतलब उसको देना ही देना है, नहीं लिखा होगा तो आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही दोगे। हर्षल बजाज आपको नहीं समझ आया? हर्षल बजाज, अंशदीप, जसकीरत, कुमारी नम्रता, अगर समझ आ गया तो ग्रीन करो, नहीं आए तो मैं फिर से बताऊं। निशा, निशा को तो आ गया। मनप्रीत, अब एक बार और देख लो। हाँ जी, हमारे पास प्रॉफिट है सिर्फ 14,000, ठीक है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट कितना है? पहले का कितना था बेटा? 12,000। मानसी, पहले का इंटरेस्ट क्या था पहले पर्सन का? मैम 12,000। 12,000। मैम 12 और फिर 16,000।
और दूसरे का था 16,000। यस मैम। मैम आपने वहाँ पे ऊपर ना 1,14,000 कर दिया। हाँ वहाँ पे ठीक करती हूँ 14,000 बेटा। देखो ये 16,000 था, ये 12,000 था, ठीक है। और हमारे पास कितना है, सिर्फ 14,000 है। अब हम क्या करेंगे, इनको लोएस्ट टर्म में बांटेंगे। 12,000 16,000 को लोएस्ट टर्म करती है, कितना आता है? 3 3 4 12 नहीं सॉरी 4 3 जा 12 और नीचे क्या आएगा, 4 4 जा 16। ये आ गई रेशियो 3:4। इसको मैंने 12,000 और 16,000 को लोएस्ट टर्म में डाल दिया, ये आ गया 3 और 4। अब मैं क्या करूंगी नेक्स्ट, जो मेरा 14,000 है उसको 3 और 4 में बांटूंगी। कैसे बांटते हैं, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3/7 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 7। क्या आंसर आएगा? 6,000 6,000 आ गया। 6,000। अगला फिर से 14,000 अब मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7। अब क्या आंसर आएगा बेटा? 8,000 कितना आएगा बेटा? 8,000 8,000 आ गया आंसर। 8,000 तो ये आएगा। फिर से देखिए, जिनको नहीं क्लियर हो रहा, जब आपके पास प्रॉफिट सिर्फ 14,000 है, लेकिन आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना कैलकुलेट हो रहा है, दैट इज 28,000। तो जितना आपके पास प्रॉफिट है दैट ओनली यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इट। तो कैसे करेंगे, जो आपका इंटरेस्ट है उसको आप लोएस्ट टर्म में कैलकुलेट करेंगे। 12,000 एंड 16,000 को लोएस्ट टर्म में काट दीजिए। कैसे काटा है मैंने, आप पहले 2 के टेबल से काट लो, मैंने सिंपल किया है 4 के टेबल से। 4 3 जा 12, 0 0 कैंसिल हो गई, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो ये कौन सी रेशियो बन गई, 3:4। ये देखो यहां से मैंने क्या निकाला है, 3:4। सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे 3:4 निकालनी है। 3:4 निकलने के बाद हम 14,000 को 3:4 में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, 14,000 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन टोटल, फिर 14,000 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन टोटल। फाइन। किसी को पूछना है? कुमारी नम्रता, एनी डाउट? मैम ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट बेटा? फाइन। नो मैम, यस मैम। ठीक है, ठीक है, फाइन फाइन। इज दिस विजिबल टू एवरीवन? यस मैम। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। विद दिस वी हैव डन। कम टू द नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए ना आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, आप इसको खुद ढूंढोगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डिफरेंट फॉर्मूलेज आर देयर। फॉर्मूला आपको बताऊंगी कैसे किया गया है, आप सिर्फ उसका कंक्लूजन लिखोगे। जैसे कि एग्जांपल बता रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हम क्या करते हैं बेटा, उसने कहा है कि इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे चार्ज किया जाता है, लेकिन तभी चार्ज होता है जब वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है। इसमें हमारे डिफरेंट केसेस हैं, जैसे व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ, हर महीने आप सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो। जैसे कि सपोज करो ए और बी दो पार्टनर हैं, ए को भी ड्राइंग्स चाहिए, बी को भी ड्राइंग्स, ठीक है। ए ने हर महीने पैसा विड्रॉ कराया। ए विड्रॉ रुपीज 5,000 per month, every month 5,000, in January 5,000, in February 5,000, in March 5,000, in April 5,000, fixed amount every month, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, और एक ऑप्शन होगी when fixed amount is not withdrawn every month। इसमें दो स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप इज when we withdraw the fixed amount, equal amount every month, fixed मतलब equal amount, and second option is when equal amount is not withdrawn। उसकी एग्जांपल क्या है, 1 जनवरी में 5,000 विड्रॉ कराए, 1 फरवरी में 2,000, 1 मार्च में 6,000। दिस इज अनइक्वल अमाउंट। तो हमारा पहला केस कौन सा होगा, when fixed amount is withdrawn every month। उसमें क्या है बेटा, उसमें आगे 3 ऑप्शंस हैं।
when the amount is withdrawn at the beginning of every month, when the amount is withdrawn at the end of every month, when the amount is withdrawn middle of every month. देखिए मैं आपको 3 ऑप्शंस बताती हूँ. ए में देखिए, when amount is withdrawn at the beginning of each month, हर मंथ के बिगिनिंग में. इसका मतलब होते हैं 1 जनवरी को पैसे निकलवाए, फिर 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई. इसे बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ. ठीक है. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? देखिए बी पॉइंट, when the amount is withdrawn at the end of each month, it means 31 जनवरी को विड्रॉ कराया, 29 फरवरी को कराया, अगर 28 है तो 20 को 8 को कराया, 29 है तो 29 को कराया, फिर 31 मार्च को कराया. ये सेकंड ऑप्शन है. अब थर्ड ऑप्शन क्या है? when the money is withdrawn in the middle of every month. इसका मतलब है 15 जनवरी को करवाया, 15 फरवरी को, 15 मार्च. ठीक है, फिर से सुनिए, फिर से I'm going to repeat it. when fixed amount is withdrawn every month, every month में 3 ऑप्शंस हैं. at the beginning of each month, at the end of each month, in the middle of each month. ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा? तीनों के आंसर्स अलग हैं. बिगिनिंग का क्या है? 6.5. देखिए लिखा है 6.5. आपको बस सिर्फ ये लर्न करना है. फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ है दैट आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट लेक्चर. पर इसमें आपने कल की क्लास में मैं आपसे आते ही सबसे पहले ये पूछूंगी कि ये आंसर्स बताइए, और आप अपने घर में टेबल बना के आंसर्स लिख के लाओगे. आई वांट टू हैव अ लुक एट योर कॉपी आल्सो. बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इज 6.5. at the end of each month is 5.5. at the middle of each month is 6. तो आपको सिर्फ इतनी ही लाइनें लर्न करनी है. बिगिनिंग में 6.5, एंड में 5.5, मिडल में 6. फाइन. अब एक बार बताइए, कॉपी में लिखिए सबसे पहले. टेक आउट योर कॉपीज एंड शेयर द स्क्रीन एवरीवन. क्लिक एट द ऑप्शन स्टार्ट वीडियो विद मी एवरीवन. हाँ जी, कॉपीज दिखाइए, अपनी कॉपीज में लिखिए. फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन ईच मंथ. जल्दी से लिखिए. फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग ईच मंथ. फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग ईच मंथ. पहला पॉइंट लिखिए. बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. नेक्स्ट में लिखिए एंड ऑफ ईच मंथ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ. सेकेंड पॉइंट एंड ऑफ ईच मंथ. थर्ड पॉइंट मिडल ऑफ ईच मंथ. वीडियो ऑन कीजिए. वंशिका, नेदित, हर्षल, आदिति, विनीत, जगरूप, मनप्रीत, आकांक्षा, प्रभजोत, नुजत, युवराज. 3 ऑप्शन लिख लिया आपने. बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ. फाइन. अब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ के आगे लिखिए 6.5 months. बिगिनिंग के आगे लिखिए 6.5 months. एंड के आगे लिखिए 5.5 months. और मिडल के आगे लिखिए 6 months. डन. ये आपको और सबसे हेडिंग में क्या है? इक्वल अमाउंट विड्रॉन. अब ये आपको कल के लेक्चर में लर्न करना है. फाइन. कल हम इससे आगे डिस्कशन करेंगे. फाइन. और कुछ पूछना है तो पूछिए. आई थिंक द टाइम इज ओवर. फिर आपका 25 पे नेक्स्ट सेक्शन भी स्टार्ट है. एनी डाउट? मैम कल आप एक बार क्वेश्चन नंबर 5 करवा देना. ठीक है बेटा, मैं सॉल्व करके रखूंगी, आपसे स्क्रीन शेयर कर लूंगी. फाइन. ओके मैम क्वेश्चन नंबर 2 भी मैम उसमें इंटरेस्ट क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 and 5. फाइन. ठीक है. ओके बेटा. ओके. थैंक Thank यू you, मैम. ma'am. ठीक है. ओके बेटे. एक्सक्यूज मी मैम. यस यस यस. मैम अगर मैम एक क्वेश्चन था मैम. पार्टनरशिप डीड है मैम. हाँ उसमें मैम 2 पार्टनर है मैम. हाँ. उन दोनों ने डिसाइड करा है वो 10% पर अपना प्रॉफिट लॉस शेयर करेंगे. जैसे किसी ने लोन दिया तो 10% पे दे देगा, पर मैम और पार्टनरशिप डीड नहीं बनी हुई, तो मैम अपन किस परसेंट पे उसको लोन का इंटरेस्ट देंगे मैम? बच्चे मुझे तेरी बात नहीं समझ आ रही, फिर से बता क्या कह रहा है, फिर से बोलना. पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है मैम किसी नहीं बनी है. ठीक है. हाँ, और मैम उन्होंने डिसाइड करा है वो 10% पे प्रॉफिट लॉस शेयर कर लेंगे. 10% का क्या मतलब हुआ? कोई रेशियो पे प्रॉफिट लॉस शेयर होता है ना बेटा, 2:1 रेशियो. 10% का क्या मतलब हुआ? रेशियो होती है हमेशा.
नहीं मैम, जैसे अपन लोन नहीं शेयर करते 6% पर, लोन के ऊपर इंटरेस्ट लगता है 6%, शेयर नहीं करते हैं। मैम, लोन के ऊपर इंटरेस्ट है interest ही कह रहा है। 6%, पर मैम, प्रॉफिट और लॉस हम शेयर करते हैं रेशो में। नहीं मैम, इंटरेस्ट मैम 10% पे वो शेयर कर लेंगे मैम। पर मैम पार्टनरशिप मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा मैम, उसमें हाँ, बहुत ज्यादा ये बेटर है, दिस इज मोर बेटर। आप ना मुझे मैम। व्हाट्सएप में ना क्वेश्चन भेज दीजिए, क्योंकि हाँ, मैम, कई question भेज क्वेश्चन देते का लैंग्वेज कुछ और होती है ना, समझाने में हाँ, अलग मैम। हो जाती है। कोई है, मैम। प्रॉब्लम नहीं, सेंड मी द क्वेश्चन इन पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप, ठीक है, भेज Thank दीजिए, you. कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। चलिए, ओके देन।